applied force or when there is no displacement. Okay. Suppose Sir, करो. when Yes, force and displacement is perpendicular. Yes, 100% right. When force and perpendicular is perpendicular to each other, at that time, your work done will be 0. Is this clear? Yes, sir. Anyone have any doubt? From the previous lecture, you can ask. If you have not doubt, I will proceed. Tell me. Anyone have any doubt? Yes or no? No doubt, sir. No doubt. Okay. Today, we will study. Yes, Manoj, you have doubt? Manoj? Prajapati, you have doubt? Tell me, beta. No? Okay. Today we will study about energy. Can anyone tell me what is energy? Energy? Capacity of doing work. Yes. Energy is nothing but the capacity of doing work. Okay? Capacity of doing work. For example, we all are human beings. Yes or no? Yes, sir. Okay. And we all take foods or nutrition for our survivability. Yes. Yes, sir. We take the food in our mouth, and in our mouth the primary digestion start. Okay, and this food molecule goes to the stomach where the gastric juice is secreted, and pepsin will act on this food and it will convert the protein into peptones. Okay, yes or no? Yes. And Yes, sir. after that, this food molecules goes to the small intestine where the complete digestion takes place. Okay. और जब ये कंप्लीट डाइजेशन होता है, ये फूड कहाँ जाता है? हमारे सेल में. और सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? वहां पे सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, कंबसन ऑफ फूड होता है, और क्या होता है? जो एटीपी के फॉर्म में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है. इज इट ओके? एंड दिस एटीपी एनर्जी इज यूज्ड बाय आवर ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस और नो? यस. Yes. यस. तो हम लोग को भी वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. इफ यू हैव एनर्जी देन यू कैन डू वर्क. इफ यू हैव नो एनर्जी देन यू कैन नॉट डू वर्क. इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes. So there are different forms of energy. For example, sun have which form of energy? Solar energy. Solar. Yes, solar energy as well as heat energy. Because in sun, what happens? The nucleus of two hydrogen combined or fused together to form the helium molecules, to form the helium atom, and to form the helium nucleus. And in this process, a large amount of heat is released in the form of a large amount of energy is released in the form of heat and light. Is this clear? Is this clear or not? Yes, sir. Yes, sir. तो सन के पास कैसा एनर्जी है? हीट एनर्जी भी है और लाइट एनर्जी भी है. इट इज क्लियर? और जो हमारा अर्थ Yes, है, sir. अर्थ का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन. सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. अब ये सन क्या करता है? यहां से सनलाइट आती है, जो प्रोड्यूसर होता है प्लांट,
इस सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है, यस और नो? इसको हम लोग Yes, sir. फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्लांट को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। तो जो सन का जो ये एनर्जी था कहाँ गया? प्लांट में। फिर ये एनर्जी कहाँ जाएगा? प्लांट से गया प्राइमरी कंज्यूमर में। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से ये एनर्जी कहाँ जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर में। और सेकेंडरी कंज्यूमर से ये एनर्जी कहाँ जाएगा? टॉप लेवल कंज्यूमर में, यस और नो? अब इसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन। और ये डेड किया, इसका डिकम्पोजिशन होगा। फिर ये एनर्जी कहाँ होगा? इन्वायरमेंट में चला जाएगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो एनर्जी का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। इसी फॉर्म में हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो जो सबसे पहला, थोड़ा तपन जी, ठीक है, जो सबसे पहला एनर्जी का फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। कोई बता सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? The energy which an object has because of its motion is called as kinetic energy. Yes. Any object which are in motion, they have the kinetic energy. For example, you are running. That means you are in motion. Yes or no? When you are running, at that time you have a kinetic energy. It is okay? Yes, Suppose sir. a ball. With the bat, you hit this ball, and after hitting the ball will move on the ground. Okay? When the ball will move on the ground, means this ball have the kinetic energy. It is clear? A car that is moving on the road, means when the car is moving on the road, at that time car has kinetic energy. Okay? तो kinetic energy कहाँ पे होगा? Kinetic energy के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट एट मोशन। क्या होना चाहिए बेटा? ऑब्जेक्ट एट मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Object Object at motion. मोशन होना चाहिए। मोशन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट के पास क्या हो? वेलोसिटी हो या स्पीड हो। क्या हो बेटा? Yes, sir. Velocity और स्पीड। स्पीड हो, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, क्या ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगा? सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मान लो इस सरफेस के ऊपर रेस्ट में है। नाउ टेल मी, क्या इस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है? नहीं है। नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि ऑब्जेक्ट मोशन में हो। If the object is not in motion, then the object have not kinetic energy. For example, this block have no kinetic energy because this block is at rest. Is this clear? Okay. Yes. When you hit this ball with the bat, this ball will get some velocity or some acceleration, and this ball will move on the grounds, and after some times this ball comes to rest. Yes or no? Yes. 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 So when this ball is in motion, at that time this ball have kinetic energy, but when this ball is at rest, that means this ball have no kinetic energy. Is this clear? Okay. Yes, sir. Now take an example, and with this example we will calculate the expression for the kinetic energy. Okay, let this is the surface. Okay, let this be the surface, and on this surface there be a block, and let the mass of this block will be m, and a force F will exert on this block. Okay, now tell me, when the force F will exert on this block,
Because of this force, the blocks comes to in motion or not? The block will comes in motion or not? Yes. देखो बेटा, ये ब्लॉक का मास m है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F. इस फोर्स के कारण ये ब्लॉक मोशन में आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? Yes. आएगा. तो जब ये ब्लॉक मोशन में आएगा तो इसके पास क्या होगा? कुछ न कुछ एक्सेलरेशन होगा. टेल मी. एक्सेलरेशन होगा बेटा? Yes, sir. यस सर. और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ? नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. Is it okay? Is this okay? According to Yes, Newton's sir. second law, F net is equal to ma, where m is the mass of this block and a is the acceleration. Okay, now tell me, what is net force here? F is the net force here, and mass is m, and a will be the acceleration. From this equation, can we calculate the acceleration? Tell me. Using this equation, can you calculate the acceleration? And what is acceleration here? Acceleration is equal to force upon mass. Is this okay? Yes, sir. Anyone have any doubt? Yes or no? Huh? Acceleration is equal to force upon mass. तो ये ब्लॉक का क्या एक्सेलरेट किया और मान लो इस पोजीशन पे ये ब्लॉक आ गया, तो इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. लेट दिस डिस्प्लेसमेंट बी x. एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. No, sir. Okay. Now tell me, what are the equation of motion? What are the equation of motion in a straight line? S is equal to ut plus half at square. सबको याद है ये इक्वेशन? Yes, sir. We read in E first chapter. square is equal to u square plus 2as. V is equal to u plus at. Anyone have any doubt? No, sir. No. Now tell me, initially this block is at rest or in motion? This block M, initially this block is in motion or at rest? At rest. At rest. That means the initial velocity of this block u will be equal to 0. Yes or no? Yes, sir. Yes. And let the final velocity be v. Is it okay? Okay. Now we will use this formula. Okay. And using this formula, v square is equal to u square plus 2as. Now what is u here? In this case, what is u? Initial velocity. Initial velocity, and this u is equal to 0. Okay. So u is equal to 0 and final velocity v. And what is displacement here? What is s here? S is nothing but the x. So we can write v square is equal to 2ax. Yes or no? Yes, sir. Now tell me, what is acceleration here? Acceleration will be equal to force upon mass. Is it okay? Can we replace this acceleration by force upon mass? Because here Yes, we sir. already calculated that acceleration is equal to force upon mass using the Newton
second law of motion. Yes. So V square is equal to 2F by M into X. Anyone have any doubt? No, sir. Yeah. No? Anyone have any doubt? No, sir. No? Okay. Now, अगर ये 2 को हम इस साइड मूव करें और इस m को इस साइड मूव करें तो क्या हो जाएगा? m v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू फोर्स इंटू एक्स. होगा या नहीं होगा? होगा सर. होगा. अब बेटा ये बता दो कि फोर्स इंटू एक्स ये क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? यस. है. क्योंकि ये x क्या है? ये x यहाँ पे क्या है? इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है. तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? वर्क डन होता है ना? हाँ सर. तो वर्क भी क्या है? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है. क्योंकि यहाँ पे v पिक्चर में आया इसलिए इस वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? काइनेटिक एनर्जी. अब आप बता सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होगा. यस सर. किसी को इसमें डाउट है? अगर अब देखो क्या इस ब्लॉक का मास चेंज कर सकता है? ये जो मास क्या है? मास ऑफ द ब्लॉक है ना बेटा. क्या इस ब्लॉक का मास चेंज होगा? नो. मास चेंज नहीं होगा ना? No, sir. नॉट No, चेंज. चेंज क्या हो सकता है? वेलोसिटी है कि नहीं? यस सर. क्या मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर? और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का मतलब क्या होता है? इफ यू इंक्रीज द वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. यस और नो? यस सर. Yes, sir. And vice versa is also true. If you decrease this velocity, then the kinetic energy will decrease. Is this clear? यस सर. इसलिए अगर कोई दो, मान लो ये कोई पर्सन A है और ये पर्सन B है. मान लो पर्सन A का जो स्पीड है v है, va है, और पर्सन B का जो स्पीड है वो vb है. अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ पर्सन A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन B है, तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? पर्सन A का ज्यादा होगा या पर्सन B का? पर्सन बी. नहीं बेटा, मैंने यहाँ पे क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. And directly proportional means that if you increase the velocity, then kinetic energy will also increase. And if you decrease the velocity, then the kinetic energy will also decrease. Is this clear? यस सर. तो इस दोनों पर्सन में जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका kinetic energy क्या होगा? ग्रेट. ज्यादा होगा. क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा. ग्रेटर होगा. यस. तो यहाँ पे वेलोसिटी किसका ज्यादा है? हाँ? Person A. पर्सन ए. पर्सन ए. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? पर्सन ए. पर्सन ए का होगा. किसका होगा बेटा? पर्सन ए का होगा. इट इज क्लियर? एंड यू ऑल्सो रिमेंबर दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. इट इज क्लियर? यस सर. Okay. On this formula, we will do a question.
Please be fast. Find the kinetic energy of a ball of mass 200 gram moving at a speed of 20 centimeter per second. Okay, now tell me what is the kinetic energy here. Be fast, or I will have to do this question. You will do, or I will have to do this. Be fast. Tell me. Yes, Arpita, Yes, sir. I will have to do this, or you will do. This is the first question I will have to do. No. Okay. So tell me what is kinetic energy. What is the formula for kinetic energy? Half mv square. Half mv square. Okay. Here, mass is given. Mass is equal to 200 gram. What will be my first step? We will convert this mass into kg. Now tell me, 200 gram will be how much kg? Huh? 0.2 kg. How much kg? 0.2 kg. 0.2 kg. Okay. And velocity. Velocity is given in the form of 20 centimeter per second. Okay. What we will do? We will convert this in meter per second. What do we have to do? We have to divide this 20 by 100 and it will gives you meter per second. This will becomes 0.2 meter per second. Anyone have any doubt? No, sir. Now No, sir. you can apply this formula that kinetic energy is equal to half. What is m here? 0.2 kg into what is velocity here? 0.2 whole square. Okay. Now tell me what is the kinetic energy? Be fast. Is 0.004 joule your answer. You all understand? Yes, sir. The first step, you have to convert the units. For example, in this question, mass is given in gram. Then what you have to do? You have to convert this mass into kg. And here, velocity is given in centimeter per second. What you have to do? You have to convert this centimeter per second into meter per second. And then you have to apply this formula that kinetic energy is equal to half mv square. Is it okay? Sir, can you explain this numerical again? So I will have to explain it again. What I tell you, in this question, you have to find the kinetic energy. The mass of this ball is given and the velocity and the speed of the ball is given. But mass is given in gram. Then what you have to do? You have to convert this gram into kg. And if you want to convert gram into kg, then you have to divide by 1000. Is this clear? Yeah. Yes? Yes. Now, the speed is given as 20 centimeter per second. You have to convert this 20 centimeter per second into meter per second. What you have to do? You have to divide this 20 by 100. This will becomes 0.2 meter per second. Okay? Now, you have to apply this formula. And what is the formula for kinetic energy? Kinetic energy is equal to half mv square. Anyone have any doubt? No, sir. No. No, sir. Put the value of mass and velocity, you will get the kinetic energy as 0.004 joule. Is this okay? Yes, sir. Yes. Okay. Shall I erase this? Yes, sir. Yes. Now, what is potential energy? The energy stored in an object because of its specific state or position is called as a potential energy. Yes. Simply, what you can say that energy
because of its position or state is called the potential energy. For example, let this be the mountain, okay, and let a ball is on the top of the mountain, okay. This ball have some energy, and this ball have energy because this ball have some height. Is this okay? Is this okay? Now tell me, height means this ball have some energy because of its position. If this ball is not on the top of the mountain, then this ball have no energy. Is it okay? Is this okay? Yes, sir. This ball have energy. Why? Because of its position. And what is the position of the ball? Ball is on the mountain. Okay? And how much distance? It will be h meter from the bottom. Is this clear? So this ball have some energy. Why? Because of the position of this ball. It is okay? And this energy is nothing but called to be the potential energy. It is clear? Yes, sir. Yes. Suppose you are in the lift. Okay? You are in the lift. And the lift is moving up. Means every time your height will be increasing. Yes or no? Yes, sir. Yes. Every time your height will be increased. Means you have some energy. Why? Because of this height. It is okay? And the energy which is because of the height or because of the position of the object or because of the shape of the object is called the potential energy. Anyone have any doubt? No, sir. देखो बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको छत के ऊपर रख दूं, छत जानते हो ना, घर का जो छत होता है, अगर आप उसके ऊपर चढ़ जाओ, अगर आप उस जब आप छत के ऊपर चढ़ते हो तो क्या होता है, आपके ऊपर एक हाइट आती है. Yes, sir. Yes. तो इस हाइट के कारण जो एनर्जी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. मतलब ये एनर्जी क्यों है, बिकॉज ऑफ पोजीशन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो क्या होता है, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को, ये मानो मेरा अर्थ सरफेस है, अगर तुम अर्थ सरफेस से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हो, इसका मतलब क्या करते हो, यू मानो ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से कहाँ ले गए, ऊपर ले गए, इसके पास क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन हुआ. इस बॉल का चेंज इन पोजीशन हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हुआ. हुआ. इस चेंज इन पोजीशन कारण क्या हुआ, इस जो बॉल पोजीशन ए पे आया, इसके पास क्या हुआ, एक हाइट आया, और इस हाइट के कारण क्या होगा, इस ब्लॉक के पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा. इट इज ओके? Yes, sir. अब देखो ये जो एनर्जी होती है, ये क्या होता है बेटा, ये जो एनर्जी होता है, ये कौन सा एनर्जी होगा, इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, फोर्स. एनर्जी बराबर होगा क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना. Yes, sir. अगर ये ब्लॉक है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा, अगर इस What, ब्लॉक sir? का मास m है तो क्या एक्सर्ट करेगा बेटा, बोलिए. इस Height. ब्लॉक के पास क्या होगा, वेट. क्या होगा बेटा, कौन सा फोर्स होगा, वेट. और वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है या नहीं होता है बेटा, वेट बराबर Yes, क्या sir. होता है, mg होता है ना. तो इस ब्लॉक पे क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, mg होगा या नहीं होगा, होगा. Yes, sir. होगा. आप इस फोर्स को रिप्लेस कर सकते हो mg से. Yes, sir. अब बताओ इस ब्लॉक का सरफेस से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हाँ,
इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ रहा है? h हाइट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हाँ सर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे हम लोग हाइट लिख सकते हैं h, यहाँ से क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। क्या होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, अब देखो मास और ग्रेविटी ये दोनों कांस्टेंट होगा, यस और नो? यस सर। यस। अब पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होगा? हाइट का फंक्शन होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। व्हाट इज द मीनिंग? इफ द हाइट विल इंक्रीज, the potential energy will also increase. If height will decrease, the potential energy will also decrease. Is this clear? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now tell me one thing. Suppose a ball is on the surface of the earth and the ball is falling. Okay. Suppose this ball is at rest at this position. Now tell me what type of energy this ball have when this ball is at rest at height h above the surface. At that time, what will be the energy contained by this ball? Tell me. Potential energy. Yes, this ball have potential energy. Now tell me, when this ball is free falling, okay, tell me the potential energy of this block will decrease or increase? Decrease. Decrease. Potential, when the ball is falling, at that time the potential energy will decrease. And now tell me, when the ball is falling, at that time which energy is increasing? Kinetic energy. Kinetic energy. Okay, kinetic energy is increasing. It is okay. Means when a ball is falling from the height, then at that time the ball have potential energy as well as kinetic energy. Okay. और क्या होता है? जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है? इंक्रीज करके कंपनसेट कर रहा है। इट इज क्लियर? Yes, sir. And potential energy is equal to mgh, mass of the block, acceleration due to gravity, and the value of g is equal to 9.8 meter per second square, and height, that is the distance or displacement. It is clear? Yes sir. Yes sir. Shall I erase the screen? Yes sir, sure. Okay. On this base we have to do a question. Write a question. An object of mass 1 kg is raised through a height h. Its potential energy is increased by 1 joule. Find the height. Shall I repeat the question? Yes sir. It is given that an object of mass 1 kg, means the mass of the object is given 1 kg. Okay, and this 1 kg mass object is raised through a height h. Okay, and its potential energy is increased by 1 joule. It is okay? Increase Yes, by sir. 1 joule. You have to find the height. What you will do? You will apply this formula that potential energy is equal to mgh. mgh. What is mass given here? 1 kg. What is acceleration due to gravity? 9.8 meter per second square. And what is height? Height is unknown. You have to find. And one thing is given that potential energy is equal to 1 joule. Yes or no? Yes sir. Yes, sir.
So we can equate this from here. Height is equal to 1 upon 9.8. Yes or no? Yes, sir. And this will gives you 0.102 meter. Anyone have any doubt? No, sir. No, sir. Now, you have heard about the elastic energy, Yes, sir. elastic potential energy. ठीक है, आप लोग कभी ये इस टाइप का कुछ देखे हो? इसमें रबर लगा होता है, बैक ऐसे करके इसमें हम कुछ फंसा के मारते हैं। Yes, हम लोग sir. Yes, sir. हम लोग क्लास उसको में ही करते हैं ना? elastic बोलते हैं। हाँ, हाँ, हम लोग सर। क्लास में करते हैं ना कि हाथ में रबर फंसा के उसमें पेज फंसा के फिर उसको किसी को मारते हैं। हाँ, तो रबर में Yes, क्या sir. होता है? रबर में एक प्रॉपर्टी होता है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। इसके इस इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी का क्या होता है? रबर में एक एनर्जी डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस। नाउ टेल मी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? हाँ, देखो, मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं होता, ये क्या होता है? सम ऑफ, क्या होता है बेटा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes. You always remember that mechanical energy is equal to sum of kinetic energy plus potential energy. It is clear? Yes, sir. Yes. Okay. After knowing these all things, we will study about conservation of energy. Conservation of energy. Can anyone tell me what do you mean by conservation of energy? To transfer it to another energy. देखो बेटा क्या होता है, कंजर्वेशन शब्द का मतलब होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। मीन्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroy, it can only change its form. It is clear? Yes, sir. Yes. अब देखो, पहले हम लोग एक एग्जांपल किए थे, क्या कि कोई ऊपर से बॉल फॉल कर रहा है। हमने क्या देखा था? बॉल के पास कौन सा एनर्जी था जब बॉल h हाइट के ऊपर रेस्ट में था? Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉल फॉल करना शुरू किया तो इसके पास कौन सा एनर्जी आया? Kinetic Kinetic energy. energy. एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा था? पोटेंशियल एनर्जी जो जो नीचे आ रहा था तो हाइट डिक्रीज कर रहा था, इसके कारण क्या हो रहा था? पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा था। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था। मतलब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू Kinetic Kinetic energy. एनर्जी। तो क्या हो रहा है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट इज क्लियर? जो Yes, हमारा sir. यूनिवर्स है, जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो एनर्जी है, ना ही हम उसके एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी के डिक्रीज कर सकते हैं। इट इज क्लियर? Yes, sir. तो इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है? Yes, sir. यस सर। चलो, अब एक चीज बताओ कि हमने पढ़ा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो क्या यूनिवर्स का एनर्जी इंक्रीज किया जा सकता है? No, sir. नो। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ
यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इज दिस ओके? Yes, क्योंकि यूनिवर्स का एनर्जी क्या कांस्टेंट है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, दैट व्हाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। इट इज ओके? देखो क्या होता है, डैम देखियो बेटा, yes sir. डैम में क्या होता है, इसके अंदर वाटर होता है, हाँ sir. तो वाटर क्या होता है, इतना h हाइट तक होता है, Yes sir. तो इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी होगा बेटा, Potential energy. और इस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, mgh। इज दिस ओके? अब देखो क्या होता है, यही वाटर क्या होता है, पेन स्टॉक मीन्स ट्यूब, जो कैनाल होता है उससे कनेक्ट होता है, किससे, टरबाइन से। अब ये क्या है, ये पानी यहाँ पे आया, ये पानी क्या करेगा, इस टरबाइन को रोटेट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाटर के पास जो पोटेंशियल एनर्जी था, ये जब टरबाइन रोटेट कर रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Kinetic Kinetic energy. एनर्जी energy. ऑफ टरबाइन। और इसी किनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन किससे होता है, आर्मेचर से कनेक्टेड होता है, जहां पे क्या होता है, ये किनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में यूज करते हैं। समझ में आया? Yes sir. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हुआ किनेटिक एनर्जी में, और यही किनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Electrical energy. और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किस में, मशीन को रन करने के लिए, फैन को रन करने के लिए, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करता है, फिर से मैकेनिकल एनर्जी और किस में, और हीट में और लाइट में कन्वर्ट होता है। इज दिस ओके? Yes sir. यस। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैन नाइदर बी, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। इज दिस क्लियर? Yes sir. किसी को Yes, कोई डाउट sir. है? No No, sir. sir. हाँ, एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि यूनिवर्स का एनर्जी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ना ही यूनिवर्स का एनर्जी इंक्रीज कर सकता है ना ही डिक्रीज कर सकता है, क्या हुआ है, कांस्टेंट होगा। तो एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आया या नहीं, Yes sir. Getting. गेटिंग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर को, ठीक है बेटा, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट करना है कि नहीं। आप लोग का टेस्ट है क्या? Yes sir. First semester. यस यस, फर्स्ट है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलो, ठीक है। अब पावर क्या होता है, पावर क्या होता है बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है बेटा, रेट ऑफ Rate of डूइंग doing वर्क। work. पावर को डिनोट करते हैं हम लोग पी से, और पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, पावर बराबर Work upon वर्क time. अपॉन टाइम। अब बताओ कि पावर का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा पावर का, बताओ बेटा। Joule. जूल पर सेकेंड। क्या होगा बेटा, वर्क का यूनिट क्या होता है, Joule. टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। क्या बोलते हैं बेटा, वाट बोलते हैं। क्या Watt. बोलते हैं, वाट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, Watt. पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। जहां पे वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। जैसे जूल किसको बोलते थे, 1 जूल बराबर क्या होता था, बोलिए, न्यूटन मीटर होता था ना। Yes sir. और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते थे। इसी तरह हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जूल पर सेकेंड को वाट बोलेंगे। किसी कोई दिक्कत? No sir. No, sir. अब देखो, एक यूनिट होता है 1 किलोवाट। किलो का मतलब क्या होता है, 10 रेज पावर 3। किलो का मतलब क्या होता है बेटा, 10 रेज टू पावर 3। इज दिस क्लियर?
यस और नो? Yes, sir. यस। तो अब बताओ 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 10⁻³ वाट होगा। इज दिस क्लियर? इस चीज को याद रखना, 1 वाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट होगा। ठीक है बेटा। अब एक और यूनिट होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का नाम सुने हो? हाँ, Yes, sir. इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होता है। यस, हम लोग मोटर को, जनरेटर को बोलते हैं हॉर्स पावर। इतना हॉर्स पावर का है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मोटर को, जनरेटर को, यस सर। मशीन को हम लोग बोलते हैं ये मशीन इतना हॉर्स पावर का है। तो 1 हॉर्स पावर क्या होता है? 746 वाट होता है। कितना होता है बेटा? 746 वाट। 746 वाट। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। इज दिस क्लियर? यस सर। यस, ओके। अब चलो हम लोग देखते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है। ठीक है। अच्छा, हम सबके घर में बिजली यूज करते हैं ना? करते कि नहीं करते बेटा? यस सर। बिजली यूज करते हैं। हमारा जो मीटर का बिल आता है किसमें आता है? यूनिट में आता है ना? यस सर। हाँ? देखते हो मम्मी बोलती है इतना यूनिट बिजली बिल आया है, बोलती है कि नहीं बोलती है? यस सर। तो ये जो यूनिट होता है बिजली का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब देखो, और इसको रिप्रेजेंट कैसे बोलते हैं? 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोवाट आवर होता है। क्या होता है बेटा? 1 किलोवाट 1 आवर। किलोवाट। अब 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होगा? हाँ जी, ये 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होगा? 10 volt. 10 वोल्ट। 10,000 वाट होगा बेटा। कितना वाट होगा? 10,000, सॉरी 1,000 वाट होगा। हमने क्या बोला कि किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻³ से। इट इज ओके। अब 1 किलो वाट बराबर कितना वाट होगा? 1,000 वाट होगा। यस और नो? यस Yes, सर। sir. अब इस आवर को कन्वर्ट करो सेकेंड में, कितना सेकेंड होगा? 60 seconds. 3600 सेकेंड होगा ना? 1 आवर में कितना सेकेंड होता है बेटा? 1 आवर में 3600 60 सेकेंड्स। कितना? 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो 1 आवर में कितना सेकेंड होगा? 60 इंटू 60 सेकेंड। यस, इज इट क्लियर? यस सर। तो अब देखो, ये वाट का क्या होता है? वाट का यूनिट क्या होता है? वाट का ऐसी यूनिट जूल पर सेकेंड होता है हाँ सर। इंटू 3600 सेकेंड होगा। यहां से सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, ये क्या बचेगा? 1000 इंटू 3600 जूल होगा। यस Yes, सर। sir. तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। यस और नो? यस सर। तो हमेशा इसी चीज को याद रखना कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल और इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। इट इज क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो इस तरह हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बेटा? किसी कोई डाउट है? नो सर। नहीं, नहीं डाउट है ना? नो सर। चलो, अब इसके बेस पे क्वेश्चन करें। हाँ सर। चलो, ए मैन carrying a bag of mass 25 kg climbs up to a height of 10 meter in 50 seconds. Calculate the power
delivered by him to the bag. Is this clear? A man carrying a bag of mass 20 kg. The mass is given, that is 25 kg. Climbs up to a height of 10 meter. Height is given 10 meter. In time is given 50 seconds. You have to calculate the power. Can you do it? First tell me, if a man is carrying a bag of mass 25 kg, then how much force exert by the man or by this bag on the man? Tell me. Force is nothing but equal to weight. Yes or no? Yes, sir. And what is the formula for weight? mg. And mass is given 25 kg and g is 9.8 meter per second squared. From here you will get weight is equal to 245 Newton. Is this clear? Yes, sir. Yes. Now what is work done? Work done is nothing. Force into displacement. Yes or no? Yes, sir. Now what is displacement here? 10 meter. It is already given that up to a height of 10 meter. Is this clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What is force? Force is 245 Newton. So work done is equal to 245 joule. Is this okay? Yes, sir. Yes. And what is power? Power is equal to work done upon time. What is work done here? 2450 upon time. How much time it will take? 50 seconds. So it will gives you 49 watt. Is this okay? Yes, sir. Shall I repeat this? Yes or no? No, sir. No, sir. No need. देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला गया कि एक मैन है जिसका कि मास कितना है 25 केजी है और इस 25 केजी बैग को लेकर वो क्लाइंब कर रहा है कितने हाइट तक 10 मीटर की हाइट तक कितने सेकंड के लिए 50 सेकंड के लिए तो सिंपली देखो उस बैग का जो फोर्स वो बैग जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो क्या होगा इसका वेट होगा यस और नो Yes, sir. Yes, sir. इसका वेट कैसे निकालेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास क्या 25 केजी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां से हमारे पास वेट क्या आ गया 245 न्यूटन आया Yes, sir. यस अब वर्क डन बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना है 245 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर दोनों को मल्टीप्लाई किए यहाँ से वर्क डन क्या आया 2450 जूल इट इज क्लियर Yes, sir. यस सर अब पावर बराबर क्या होता है वेट अपॉन टाइम यहाँ पे सॉरी पावर बराबर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम वर्क डन कितना है 2450 और टाइम कितना है 50 सेकेंड दोनों को कैलकुलेट किए कितना है मेरे पास पावर 49 वाट 49 watt. इसमें कोई डाउट है No, sir. No, sir. मैं क्लास को क्लोज करूं Yes, sir. Wind up Yes. the session. Yes, sir. okay okay good night and bye everyone